اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرتد کے جواب میں ہم نے 5 ویڈیوز ریلیز کی ہیں۔ ان ویڈیوز میں غیر مذہبی لوگوں کی جانب سے جو گستاخیاں کی گئی ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ چونکہ ان اعتراض کرنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ارتداد کے بعد مین سٹریم سنی میں شامل ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ انہوں نے چند ایک کتابوں میں تحریر کردہ واقعات کو بتایا ہے۔ 2 لوگ ہیں، اعتراضات پر مشتمل ویڈیوز میں ایک کا چہرہ دکھائی دے رہا ہے تو دوسرے کی صرف آواز سنائی دے رہی ہے۔ جس فرد کی آواز اعتراضات پر مشتمل ویڈیوز میں سنائی دے رہی ہے اور جن کتابوں کے حوالے وہ پیش کر رہے ہیں ان تمام کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے وہ کتابیں کہاں سے لی، کیا بول کر ان کتابوں کو حاصل کیا، پھر کیسے ان کتابوں کی زیروکس کاپی بنا کر اصلی کتابیں واپس کر دی، وہ تمام تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس سارے عمل میں اگر نہ دکھائی دینے والے شخص کی نیک نیتی ہوتی تو شاید وہ ہمارے لیے فکر کا لمحہ ہوتا، مگر جس مقام پر جا کر نہ دکھنے والے شخص نے ان کتابوں کے حوالے سے تحقیق کی ہے، ان کا ماضی خود نہایت ہی خراب ہے۔ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے کر خود کو صحیح مسلمان ثابت کرنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور جن موصوف کا چہرہ اعتراضات پر مشتمل ویڈیوز میں دکھائی دے رہا ہے ان کے حال سے تو قوم مہدویہ واقف ہے۔ ارے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جس کام کو انجام دینے کے لیے موصوف کے والد نے اپنی زندگی کے 40 قیمتی سال صرف کر دیے، مگر نہ انہیں وہاں چین ملا اور نہ یہاں سکون ملا۔ آج ان کی خود کی اولاد ان کی دشمن بنی ہوئی ہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم کی صورتحال کا شکار بنے ہوئے ہیں، اور یہ محض بزرگان دین کی شان میں گستاخیاں اور مرشدین اکرام کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کی رجت ہے۔ یقین جانے نہ گھر میں سکون ملے گا اور نہ ہی گھر کے باہر سکون ملے گا، اور یہی حال ان افراد کا بھی ہے۔ آج ہم چند ایک ایسے حوالے پیش کریں گے جس کو سننے کے بعد نہ صرف مین سٹریم سنی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اپنی بغلیں جھانکیں گے، بلکہ ان کی پشت پناہی کرنے والے جھولا چھاپ ان کے سرداروں کے بھی حواس باختہ ہو جائیں گے۔ تبلیغیوں کے ایک بڑے عالم شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نے ایک کتاب فضائل الاعمال تحریر کی ہے۔ اس کتاب کی 2 جلدیں ہیں۔ ہم حتی الامکان یہ کوشش کریں گے کہ اس ایک ہی ویڈیو میں ان دونوں جلدوں کا احاطہ کرتے ہوئے اس کتاب میں جس کو متنازع قرار دیتے ہوئے اہل سنت کے جید علماؤں نے فتوے جاری کیے ہیں، اس میں کی جانے والی گستاخیوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں مومن سے مسلمان بن جانے والے عامر اور ان کے ساتھی عبداللہ کا مشکور ہوں، کیونکہ انہی کے اعتراضات نے مجھے اس تحقیق کو انجام دینے کا حوصلہ دیا ہے، ورنہ ہم نے تو آج تک کسی کو برا بھلا نہیں کہا، نہ کسی کے عقیدے میں جھانکنے کی کوشش کی اور نہ ہی ان کو باطل قرار دینے کا ہم کو وقت ملا ہے۔ اگر ہم کو کوئی چھیڑے گا تو ہم بھی ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے جو کتابیں تحریر کی ہیں اس کو بنیاد بنا کر ہمارے عقیدے کو باطل قرار دینے کی جو کوششیں مودودی کے شاگردوں نے کی ہے، اس پر خاموشی ہمیں نہ صرف ہمارے اسلاف کے سامنے شرمندہ کرے گی بلکہ روز محشر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ خیر، اس کتاب فضائل الاعمال کے 8 ابواب ہیں اور ہر باب میں کچھ نہ کچھ گستاخیاں اور بدعقیدگی ضرور ہے۔ مرتد کے جواب کی سیریز میں ہم اس کتاب کے چند باب پر روشنی ڈالیں گے جس میں گستاخیاں کی گئی ہیں، اور پھر حسب روایت مومن سے خود ساختہ مسلمان بنے ہوئے عامر اور عبداللہ سے پوچھیں گے کہ اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ کتاب فضائل اعمال کے باب فضائل ذکر کے صفحے نمبر 42 پر تحریر ہے کہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے مرسل روایت نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے پاس تشریف لاتے ہیں جو چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات الہیہ کی سوچ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو کہ وہ وراء الورا ہے، اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ اسی صفحے پر آگے بڑھتے ہوئے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو بتا دیجئے جو عجیب ہے۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کون سی بات ہے جو عجیب نہ تھی؟ آپ فرماتی ہیں کہ
ایک رات हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मेरे बिस्तर पर मेरे लिहाफ में लेट गए. फिर फरमाते हैं कि मैं तो अपने रब की इबादत करूँगा. ऐसा फरमाकर उठ गए, वज़ू फरमाया, नमाज की नीयत बांधी और रोना शुरू कर दिया. यहाँ तक कि आंसू सीने मुबारक तक बहते रहे. यूं ही रुकू में रोते रहे, फिर सजदे में रोते रहे. सारी रात ऐसे ही रोने में गुजार दी, हत्ता कि सुबह की नमाज के लिए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलाने के लिए आ गए. मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप तो बख्शे बख्शाए हुए हैं, फिर इतना क्यों रोए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? फिर फरमाया, मैं क्यों ना रोता, हालांकि आज ये आयतें नाजिल हुई हैं, इन्ना फी खल्क़िस समावाती से वक़िना अज़ाबन नार तक. और फरमाया, हलाकत है उस पर जो इनको पढ़े और गौर व फिक्र ना करे. नाजरीन, क्या इस वाक़े को तहरीर करते हुए मुसन्निफ़ ने, जिसका ताल्लुक़ तबलीगी जमात से है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की है? क्या बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा सकती हैं कि आप तो बख्शे बख्शाए हुए हैं? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरिया अपनी ज़ात अक़दस के लिए था? अल्लाह ताला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी का मुतमन्नी था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तो सरापा रहमत है. आप शफ़ीउल मुरसलीन हैं, आप शफ़ीउल मुज़लमीन हैं, आप शफ़ीउल आशिक़ीन हैं. आपको गौर व फ़िक्र की हाजत का एहसास दिलाने वाले इस मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद ज़करिया ने शान अक़दस में इस वाक़े को तहरीर करते हुए ना सिर्फ गुस्ताखी की है, बल्कि अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घटाने की कोशिश भी की है. आगे इसी सफ़े 43 पर इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से तहरीर करते हुए कि गौर व फ़िक्र को अफजल इबादत इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मायने ज़िक्र के मौजूद ही होते हैं. दो चीज़ें इजाफ़ा होती हैं. एक, अल्लाह की मारिफत इसलिए गौर व फ़िक्र की कुंजी है. दूसरा, अल्लाह की मोहब्बत की फ़िक्र पर यह मुरत्तिब होती है. यही गौर व फ़िक्र है जिसको सूफिया मराक़िबा से ताबीर फरमाते हैं. बहुत सारी रिवायत से इसकी अफजलियत साबित होती है. मसनद अबुल आला की रिवायत है, बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाती हैं, वो ज़िक्र खफ़ी जिसको फ़रिश्ते भी ना सुन सके 70 दर्जात दो चंद होता है. क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला तमाम मखलूक को हिसाब किताब के लिए जमा फरमाएंगे, जब करामिन कातिबीन नामा आमाल लेकर आएंगे, इरशाद होगा फ़ला बंदे के कुछ आमाल पढ़ो. जब कुछ बाकी रह जाएंगे तो इरशाद होगा कि हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जो लिखी ना हो. अगर महफूज ना हुआ तो इरशाद होगा कि हमारे पास इसकी ऐसी नेकी मौजूद है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है. वो ज़िक्र खफ़ी है. और बहक़ी ने शाब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत नक़ल की है कि जो ज़िक्र को फ़रिश्ते भी ना सुन सके उसको वो सुने. 70 मरतबा बढ़ा हुआ है. नाजरीन, अगर इस तरह की तहरीरात कौम महदविया की किताबों में मौजूद होती तो ये लोग जो मोमिन से खुद साख्ता मुसलमान बन गए हैं बेतुकी बातें करते, बातिल अक़ीदा, गुमराह अक़ीदा का वावेला मचाते, जबकि इनके खुद के आकाओं के उस्तादों की लिखी हुई किताबों की तहरीरात जो हम पेश कर रहे हैं उस पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं. हम बारहा ये कहते हैं कि कौमी किताबें ईमान और अक़ीदे की तर्जुमान हरगिज़ नहीं हो सकती, और हम महदवियों के लिए तो हरगिज़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे आका इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का फरमान आली है कि जहाँ कहीं रहो खुदा की याद में लगे रहो. सफ़र में, हजर में, खिलवत में, बाज़ार में, गर्ज़ के एक लम्हा भी खुदा की याद से गफलत पर नाराज़गी का इजहार किया गया है. फिर भी हम महदवियों को बातिल अक़ीदा रखने वाला करार दिया जाता है, जबकि ऐसी ऐसी तालीमात ऐसे लोगों की किताबों में तहरीर की गई है जिसको पढ़कर अक्ल दंग रह गई है. इसी किताब के बाब फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ के सफ़े नंबर 88 पर मुसन्निफ़ तहरीर करते हैं कि दलाइलुल ख़ैरात की वजह तालीफ़ मशहूर है. मुअल्लिफ़ को सफ़र के दौरान वज़ू करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी. डोल और रस्सी ना होने की वजह से वो काफ़ी परेशान थे. एक लड़की ने यह हाल देखा, वजह दरियाफ्त की, फिर कुएं में थूक दिया. पानी किनारे तक उबल कर आ गया. हैरान होकर मुअल्लिफ़ ने वजह पूछी तो लड़की ने कहा कि ये बरकत है दुरूद शरीफ की, जिसके बाद उन्होंने ये किताब दलाइलुल ख़ैरात तालीफ़ की है. एक लड़की जो दुरूद शरीफ का बिर्त करती है उसकी ये करामत है
तो फिर शब रोज़ अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना करने वाले गिरोह का क्या आलम होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर की आंखों से दीदार खुदा करने वालों की क्या कैफियत होगी। मगर यहाँ पर ज़िक्रुल्लाह और ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सजाने वालों की तहरीर करदा किताबों पर तनकीदें की जा रही हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इसी बाब में आगे ऐसी कई बातें तहरीर की गई हैं जिसको सुनने के बाद आप खुद हैरत ज़दा हो जाएंगे। चौथी फसल के सफ़े नंबर 86 पर एक मसला तहरीर है जिसमें मुसन्निफ इस बात का इकरार करते हैं कि दुरूद शरीफ हज़रत अंबिया हज़रत आली जमीहम इस्लाम की किसी और पर इस्तिक़लालन दुरूद शरीफ ना पढ़े तबन मज़ायक़ा नहीं है। मसलन यूँ ना कहें अल्लाहुम्मा सल्ली अला आली मुहम्मद, बल्कि यूँ कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। दुरूद शरीफ को दुनिया मकासिद के लिए पढ़ने से किताब दुर्र मुख्तार में मना फरमाया गया है और तिलावत दुरूद शरीफ के दौरान आज़ा को हरकत देना और आवाज़ बुलंद करना जहल करार दिया गया है। इसी किताब फ़ज़ाइल आमाल के बाब फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ की 5वीं फसल के सफ़े नंबर 51 पर मुसन्निफ तहरीर करते हैं कि एक शख्स जिसका नाम मस्तह था, वो अपनी ज़िंदगी में दीन के एतबार से बहुत बेपरवाह था, यानी कि गुनाहों की कोई परवाह ही नहीं करता था। उसके मरने के बाद मैंने ख्वाब में देखा, उससे मैंने पूछा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया है। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। मैंने पूछा ये किस अमल से हुआ है। उसने कहा कि मैं एक मुहद्दिस की खिदमत में हदीस नक़ल कर रहा था, उस्ताद ने दुरूद शरीफ पढ़ा, मैंने भी उनके साथ बहुत आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ा। मेरी आवाज़ सुनकर मजलिस में मौजूद तमाम लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा। उस वक्त हक़ ताला ने मजलिस में मौजूद तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी। मुसन्निफ आगे तहरीर करते हैं कि रोज़ुल फ़ाइक़ में ये क़िस्सा ज़रा तफसील के साथ दर्ज है। वो कहते हैं कि सूफिया में एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मेरा एक पड़ोसी था, निहायत ही गुनहगार था, हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता था, दिन और रात की उसको खबर ना थी। मैं उसको नसीहत करता तो वो सुनता ना था, तौबा का कहता तो वो मानता ना था। जब वो मर गया मैंने उसको ख्वाब में देखा, निहायत ही अच्छे और ऊंचे मुकाम पर था, जन्नत का लिबास पहने हुए था, एजाज़ व इकराम में था। मैंने उससे वजह दरियाफ्त की तो उसने कहा कि एक मुहद्दिस की खिदमत में हदीस नक़ल कर रहा था, उस्ताद ने दुरूद शरीफ पढ़ा तो मैंने भी बहुत आवाज़ में दुरूद शरीफ पढ़ा। मेरी आवाज़ सुनकर मजलिस में मौजूद तमाम लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ा। उस वक्त अल्लाह ताला ने मजलिस में मौजूद तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी। ज़रा सोचिए, एक शराबी, फासिक, फाजिर शख्स मुहद्दिस की खिदमत में कर क्या रहा था। यकीनन दुरूद शरीफ की फ़जीलत से दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी है, मगर दुरूद शरीफ के ताल्लुक़ से जिस तरह की गुस्ताखी ये लोग कर रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घटाने की किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह। इसी बाब में सफ़े नंबर 104 पर अल्लामा सक़ावी हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल करते हैं, मैं जब हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के साथ था, हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद खड़े हो गए, हज़रत शिबली से मुनाक़िहा किया और पेशानी को बोसा दिया। मैंने अर्ज़ किया, मेरे सरदार, आपने ये क्यों किया जब आप और तमाम उलमाए बगदाद का ये मानना है कि ये पागल हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वही किया जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने अपना ख्वाब सुनाया। वो कहते हैं कि मुझे ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मैंने देखा कि हज़रत शिबली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शिबली के इस्तक़बाल में खड़े हुए और उनकी पेशानी को बोसा दिया। गौर करें नाज़रीन, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के इस्तक़बाल में खड़े हुए और उनकी पेशानी को बोसा दिया। मुसन्निफ इसी सफ़े पर आगे तहरीर करते हैं कि अबुल क़ासिम ख़ाफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर उनकी ताज़ीम और इस्तक़बाल में खड़े हो गए। तमाम शागिर्दों में इस बात का चर्चा हुआ। उन्होंने उस्ताद से अर्ज़ किया कि आपकी खिदमत में वज़ीर आज़म आए मगर आप खड़े नहीं हुए।
मगर शिबली के इस्तकबाल में खड़े हो गए। तो हज़रत अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ऐसी शख्सियत के लिए क्यों ना खड़ा हूँ जिसकी ताज़ीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते हैं। नाजरीन, अगर ऐसा कुछ वाक़या हम महदवियों की किताबों में तहरीर है तो आमिर और अब्दुल्ला जैसे मोमिन से नए मुसलमान बनने वालों के लिए ये बर्दाश्त नहीं होगा, मगर फ़ज़ाइल आमाल पर तहक़ीक़ करने की हिम्मत इन नए मुसलमानों में हरगिज़ नहीं है। इसी किताब के सफ़े नंबर 111 पर तहरीर है कि नज़हतुल बसातीन में हज़रत इब्राहीम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह से नक़ल की है। वो कहते हैं कि सफ़र के दौरान मुझे एक बार प्यास मालूम हुई। प्यास की शिद्दत से बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद मेरे मुंह पर किसी ने पानी छिड़का। आंखें खोली तो देखा कि एक मर्द हसीन घोड़े पर सवार है। उसने कहा कि मेरे साथ रहो। कुछ ही देर गुजरी थी कि उस नौजवान ने कहा कि तुम क्या देखते हो। मैंने कहा यह मदीना है। उसने कहा कि उतर जाओ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और अर्ज़ करना कि आपका भाई खिज़र आपको सलाम कहता है। अबुल खैर इख्ता फरमाते हैं कि मैं मदीना आया, 5 दिन वहाँ पर क़याम किया। मुझे कुछ ज़ौक़ व लुत्फ़ हासिल ना हुआ। ख़बर शरीफ के पास गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम पेश किया। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका मेहमान हूँ। उसके बाद मिंबर के पीछे जाकर सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपके दाएं जानिब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाएं जानिब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझको हिलाकर उठाया और कहा कि उठ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। मैं उठा और हज़रत के दोनों आँखों के दरमियान चूमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रोटी इनायत फरमाई। मैंने आधी खाई और जब जागा तो आधी रोटी मेरे हाथ में थी। ऐसे बहुत सारे वाक़यात इस किताब फ़ज़ाइल आमाल जिल्द अव्वल में तहरीर किए गए हैं, मगर हम ज़रूरी नहीं समझते कि वो तमाम के तमाम वाक़यात हमारी इस वीडियो में हम शामिल करके आपका और हमारा वक्त ज़ाया करें। मगर ज़रूरी था नए खुद साख्ता मुसलमान के वीडियोस का जवाब देना, इसीलिए हमने ये तहक़ीक़ शुरू की और नए खुद साख्ता मुसलमानों के वीडियोस का जवाब वीडियोस के ज़रिए ही हमने दिया है। आप हमसर क्यों बोलते हैं? आप दुगाना फ़र्ज़ क्यों बोलते हैं? आप मेहदी का इनकार करने वालों को काफिर क्यों बोलते हैं? आप ज़िक्र की तलखीन क्यों करते हैं? आप तर्क दुनिया क्यों करते हैं? आप मुर्शिदीन इकराम की सोहबत इख्तियार करने की तलखीन क्यों करते हैं? ये तमाम बेतुके सवालात का जवाब हमारे असलाफ 900 सालों से देते आ रहे हैं। फिर भी ये सवालात जारी है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि उन लोगों का हाल वैसा ही है जैसा अबू जहल ने हाथों में कंकरियों का कलमा पढ़ता हुआ देखने के बावजूद भी वासिले जहन्नुम हुआ। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे अकायद को बातिल करार देने वाले, हमारी कौमी किताबों को गुमराह करने वाली किताबों की तरह पेश करने वाले, मोमिन से नए मुसलमान बनने वाले आमिर ने खुद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की है। नाजरीन, ये एक वाक़या आपके सामने पेश करता हुआ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जब भाई माजिद ने एक स्टिंग ऑपरेशन अंजाम दिया था, चादरघाट में किसी एक मुकाम पर एक दफ्तर में जाकर भाई माजिद ने तहक़ीक़ की और फिर मोमिन से नए खुद साख्ता मुसलमान बनने वाले आमिर से फ़ोन पर बातचीत करते हुए तफसीलात पेश की थी। उस वक्त मोमिन से खुद साख्ता मुसलमान बने हुए आमिर ने भाई माजिद से कहा कि आप तो दौरे हाजिर के उमर हैं, यानी गुमराह करने, अपनी तरफ राग़िब करने, अपनी जानिब माइल करने के लिए नए खुद साख्ता मुसलमान ने भाई माजिद को दौरे हाजिर का उमर तक कह डाला। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो ये भूल गए हैं कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी रसूल है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। और ऐसी हस्ती मसूद से भाई माजिद का तक़ाबुल करने में मोमिन से नए मुसलमान बने हुए आमिर को ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। और होती भी कैसे? ये वो लोग हैं
جو بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی کو کاتب وحی تحریر کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یاد رکھو تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے دین حق میں کوئی رکنا پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ میلاد خلیفۃ اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے پیش نظر تم ہم مہدویوں کے حوصلے پست کرو گے تو بھول جاؤ، انشاءاللہ ہم مہدویوں کے حوصلے کبھی پست نہیں ہوں گے، اور ہر سال سے زیادہ اس سال ہم اور بھی جوش و خروش کے ساتھ میلاد خلیفۃ اللہ امامنا حضور میران سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام منائیں گے، اور ہر سال کی طرح دوگانہ لیلۃ القدر ہم اور بھی دھوم دھام کے ساتھ ادا کریں گے۔ تمہارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے، جس طرح آج تمہارے والد اپنی بغلیں جھانکنے پر مجبور ہو گئے ہیں ویسا ہی حال تمہارا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔